Hi everyone. Hope you all are doing good today. So, today's topic is most important judgments of 2020. This is part 1 of the series. There are about 20 judgments of 2020 which are very important concerning criminal law and civil law. So, we will discuss all those judgments. Alright, this is important for judicial services exams for all these states because these judgments are important for your prelims, for your mains. Okay, for both purposes, these judgments are important. This is a little background about me. I am Unnati Srivastav. I have done my master's in law from NLU Delhi. I got AIR 2 in LA 2019 and I am also NET qualified 2020. Okay, I also got AIR 18 in Supreme Court clerkship. I have faced the UP Judiciary interview in 2019 and written the mains of Delhi and Rajasthan Judiciary in 2019. For subscribing to any plans on Unacademy, you can use the code UNNATILIVE. Okay. Moving forward, before we start the session, please share this video so that others can also get benefited, and also like. Okay, you also press the bell icon so that you do not miss any notification, and please subscribe to the channel. This is what we are doing at Unacademy. Okay, we are right now Rajasthan Judiciary and Haryana Judiciary का vacancy is out. हरियाणा की तो मार्च में आ चुकी थी, उसकी फॉर्म फिलिंग हो चुकी है. राजस्थान की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों के एटलीस्ट मिनिमम प्रीलिम्स तो इस साल हो जाएंगे. सो यू मस्ट come to Unacademy and start your preparation from now for both prelims and mains, your conceptual knowledge as well as your bare act knowledge. Alright. On Unacademy, you get a chance to compete with thousands of aspirants, and there are many scholarship tests. There are a lot of mock tests that you can take part in. This is something we do every day. Free special classes every day. Okay, these classes are free, they are live. All right, and these are the subjects that we take, and we also local laws is of all the states. Okay, राजस्थान में बहुत सारे local laws आते हैं, so this is going to be beneficial for you if you're preparing for Rajasthan. All right, so then these are the subjects. I take constitutional law. In fact, I have a class at 7 today. It's a free special class on constitutional law. I'll be taking amendments. All right. So on Saturdays, I take constitutional law. On Sundays, I teach CRPC. Right. On Tuesdays, I teach Indian Evidence Act and Indian Contract Act. मंडे को होता है, ठीक है, एंड IPC आई टेक ऑन थर्सडे. तो हम इसको, हमारा अप्रोच होता है पढ़ने का, वी टीच यू द बेयर एक्ट एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स. ऑल्सो जितने भी रेलेवेंट केस लॉज हैं, चाहे पुराने लैंडमार्क जजमेंट हो या फिर रीसेंट, सो जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो एकदम अपडेटेड है 2021 के हिसाब से. नाउ दिस इज समथिंग that Unacademy offers, special class features. All right, so we have interactive live classes. You can attend, you can live chat with the educator, you can ask your doubts. Okay, and all the doubts are cleared then and there by the educator. Okay, you can have a conversation with the educator. There are polls for learners. All right, so that you can respond to the polls and we can get to know that how much you've understood it or not. So there are a lot of questions asked by the educators through these polls, and then there are also MCQs done, right? And you can take part in these polls and you can get your name on the leadership board. Okay, you can raise a hand
For Plus subscribers, they can talk with educators, okay, in live classes, and they can get their doubts resolved in real time from their educator. Okay, you always get notified. This is a very nice feature. You always get notified of your lessons, and you'll get recommendations according to your watch time, whatever you're watching. So this is a very smart feature. You get notes. You can download lecture notes and get access to recorded sessions of live classes. Okay, so that you can keep revisiting and revising. And I can't stress on this more that revising is so important for clearing judiciary exams or any exam, even if you're writing LL.M. Okay, revising will actually make you shine, get you that rank. Okay, you can learn from anytime, anywhere, okay, on your device, and you can do it either from phone or you can do it from laptop. Fine. Then we have Plus subscriptions. Okay, we have India's best educators with us. There are interactive live classes, live tests and quizzes, and structure courses and PDFs, which is so very important. I have mentioned it time and again that you need to know what you need to study and what you need to leave aside. All right, these are the batches that are going on right now, and this is something which is so important at this time, because if exam has to happen in another 2 or 3 months, you need to attend mock tests. This is the time you start attending the mock test. The process is very simple. You have to attempt a mock and you have to check it carefully, okay, that kahan pe aapse mistake ho rahi hai, what are those topics that you're unable to catch. All right, and once you figure that out, you revise those topics. Okay, you revise those topics, you go back and you reread them, and you also make notes of those, because जब आप फाइनली प्रीलिम्स या मेंस देने जाओगे तो आपको ये चीजें, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज है जो बार बार पूछी जा रही है, इफ ऑन इन दीज मॉक टेस्ट, बिकॉज ये मॉक टेस्ट काफी एनालिसिस करके बनाए जाते हैं. ओके, सो एंड ये भी होता है, we bring you a detailed analysis of tests, so you have to take the test, attend the analysis, because this is how you prepare. This is how you prepare smartly. When we say it's not only hard work, it's smart work, so this is what we are talking about. These are the subscriptions that you can avail. You can use my code UNNATILIVE, all right, for taking any subscriptions. Please subscribe to the channel, as I've already told you. This is our YouTube channel, fine, and this is the Telegram channel. So you can also join Telegram channel for any real-time notifications and updates. Okay. Good afternoon, Rohit. Good afternoon. चलो, अब सेशन बिगिन करते हैं. So this session में आज हम लोग 5 केस लॉज पढ़ेंगे 2020 के. Don't feel कि 2020 के cases are not important, because the point is कि 2020 में कोई एग्जाम नहीं हुआ, so 2020 के भी cases आपसे 2021 में पूछे जाएंगे, ठीक है. और anyway, some judgments are landmark judgments, like if constitution law may, if it is changing a law, if it is defining that something is a fundamental right, those things are important. Even criminal law may, like how do you understand that something is a landmark judgment? You actually see if it is changing a law, okay, if it is changing the position of the law somewhere, that is your landmark judgment, that you have to note it then and there with that topic, because usko aap, and jitna aap recent judgments ko likhenge utna aapko अच्छे marks मिलेंगे. Okay, so this is what we are doing today. ये case laws की series आगे भी चलती रहेगी. Okay, we will be discussing all important case laws. First, we will talk about Anuradha Bhasin versus Union of India. You can just type in the comment section अगर आपको पता है कि ये cases किन चीज़ों के बारे में हैं, ठीक है. We can have an interactive session. I want to have an interactive session. So this case was about Kashmir का lockdown. Okay. जिसमें internet actually turned out to be a fundamental right. Shilpa Mittal versus State of NCT of Delhi is important for Rajasthan. That's why I've got this
बिकॉज राजस्थान में आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. ओके, सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में it has changed the position of some sections. Okay, so I don't think so there is any percentage minimum percentage required, Simar. I don't think so there is a minimum percentage required, but if you want you can check. राजस्थान का नोटिफिकेशन अभी निकला है. आई एम नॉट श्योर अबाउट परसेंटेज कितना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई मिनिमम परसेंटेज होता है. यू शुड बी जस्ट passed, LL.B passed होने चाहिए आप. That's my understanding, but you can, I might be wrong, so you can just check it once. Okay, then we have Kesham Meghachandra Singh versus the Honorable Speaker, Manipur Legislative Assembly and others. This is important from the perspective of polity. Okay, because ये anti-defection law के respect में कुछ बात करता है. Okay. Then we have Prithvi Raj Chauhan versus Union of India. This is important for all the exams. This talk about SC/ST Act. ठीक है, ये जजमेंट आपके लिए इसलिए भी important हो जाता है अगर मेंस में मेंस में इस तरह का कोई टॉपिक आता है तो ये जजमेंट मेंशन करना आपके लिए अच्छा होगा. एंड दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जजमेंट जो यूजुअली जुडिशरी के एस्पिरेंट्स शायद छोड़ देते होंगे, बट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट समथिंग वेरी रीसेंट, cryptocurrency, that's why I've got it for you. क्योंकि ये जजमेंट थोड़ा सा जीके के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, ये जजमेंट आया था जनवरी 10, 2020. ओके, जनवरी 10, 2020. 3 judges bench. Justice N.V. Ramana, okay, Justice Suryakant, and Justice B.R. Gavai. इन्होंने ये जजमेंट को डिलीवर किया था. There was a batch of petitions which were filed in the Supreme Court, okay, which challenged the legality of curfew orders. I hope everybody knows कि जब 2019 सितंबर में हम लोगों ने 377 को एब्रोगेट कर दिया, 370 आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, तो उसके बाद there were a lot of curfews and lot of lockdowns which were imposed in कश्मीर. सो ये जो पेटिशंस थे ये इन कर्फ्यू ऑर्डर्स की लीगैलिटी को चैलेंज करने के लिए थे. एंड देयर वाज आल्सो अ इंटरनेट शटडाउन. ठीक है, देयर वाज आल्सो अ इंटरनेट शटडाउन. सो इसकी भी लीगैलिटी को, ये जो ऑर्डर था इंटरनेट शटडाउन का, इसकी लीगैलिटी को भी इसमें चैलेंज किया गया था. ओके, और ये सब कुछ क्यों हुआ था? एज आई टोल्ड यू, इन द वेक ऑफ abrogation of 370, right? So इस petitions को, ये these are the batch of petitions. इन petitions को सुनने में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें डिक्लेयर करी. सुप्रीम कोर्ट said that freedom of speech and expression and freedom of trade and commerce, ओके, अगर ये दोनों को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं थ्रू अ मीडियम ऑफ इंटरनेट, ओके, जैसे कि व्हाट्सएप यूज करना, ठीक है, उससे हो सकता है आप अपनी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हो. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट मतलब ई कॉमर्स, राइट? इन सब के लिए अगर आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है. कैन यू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन कौन सी राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होगा? व्हाट डू यू थिंक?
This is constitutionally protected under 19(1)(a) and 19(1)(g). ठीक है, this talks about freedom of speech and expression, and this talks about freedom of trade and commerce, right? So this was the first thing that the Supreme Court said. Fine. Next, the Supreme Court also said that indefinite suspension of internet is not permissible. Okay, and इसी में ये बात निकल के आई कि इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट. अ लॉट ऑफ पीपल इंटरप्रेटेड इट as that इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट. एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था, बट इनडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इज नॉट परमिसिबल, कि आपने एक इनडेफिनिट टाइम के लिए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया. ठीक है. Then there was something else also, section 144 CRPC, right? इससे बेसिकली जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कर्फ्यू, एक्चुअली कर्फ्यू नहीं होता है, सेक्शन 144 इम्पोज हो जाता है, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कर्फ्यू बोलते हैं. सेक्शन 144 CRPC में कर्फ्यू वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है. ठीक है. सो सेक्शन 144 CRPC का ही इस्तेमाल करके ये लॉकडाउन एंड ये कर्फ्यूज वहां पे लगाए गए थे. ठीक है, कश्मीर में. तो it was said that repeated orders of section 144 is actually abuse of power. ठीक है. And also it was said that this power of section 144 CRPC ये सिर्फ emergency सिचुएशंस में यूज करनी है. ओके, आप इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, किसी का लेजिटिमेट एक्सप्रेशन है, ओके, या किसी की ओपिनियन है, किसी की ग्रीवांस है, किसी की एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट है, उसको किल करने के लिए आप सेक्शन 144 का यूज नहीं कर सकते. ठीक है. I hope this is clear to everybody. Just type in the comment section if it is clear to you. This was what was held by the Supreme Court in this case, and this is a very important judgment क्योंकि 9 fundamental rights के perspective से हमेशा ही judgments important होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है. Let's move forward. Now we have Shilpa Mittal versus State NCT of Delhi and another. As I told you, this is very important for RJS. Because this is talking about Juvenile Justice Care and Protection of Children 2015 Act, okay, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में JJ Act 2015 बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें हुआ क्या था, let's understand it ऐसे कि there is something called heinous crime. Okay, Amrita and Shivam, thank you so much. Heinous crime. Okay, and there is something called serious crime. ये दोनों डिफाइंड हैं JJ एक्ट में. ठीक है. इसको ऑफेंस कहते हैं, नॉट क्राइम. हीनस ऑफेंस एंड सीरियस ऑफेंस. ओके, सो सीरियस ऑफेंस आपका डिफाइंड है 254 में, सेक्शन 254, एंड हीनस क्राइम डिफाइंड है सेक्शन 233. If somebody is writing RGS, ये दोनों आपके लिए स्टार डेफिनेशंस हैं, आपको वैसे भी आना चाहिए. आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जाती हैं कि ये डेफिनेशन क्या थी. इनफैक्ट RGS का पेपर ऐसा होता है कि वो मेंस में आपसे बेयर, एटलीस्ट लोकल एक्ट से, वो आपसे बेयर एक्ट से ही सवाल पूछते हैं. बट दिस केस विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्पसेस. ठीक है. इफ यू विल कोट दिस जजमेंट इन योर आंसर्स, दिस विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. ओके, तो सीरियस ऑफेंस क्या होते हैं? सीरियस ऑफेंस होते हैं, ये ऐसे डिफाइन करते हैं उसमें कि कोई भी ऑफेंस सीरियस ऑफेंस होगा अगर किसी भी लॉ में, एनी लॉ, उसकी पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा, ओके, एंड 7 साल तक
3 to 7 years की पनिशमेंट अगर दी है, जैसे कि थेफ्ट, ओके, आईपीसी में थेफ्ट की सजा 3 years होती है, राइट। तो इस तरह का कोई ऑफेंस जिसकी सजा 3 years से लेके 7 years तक है, उसके लिए उसको हम सीरियस ऑफेंस बोलेंगे, ठीक है। दिस इज सीरियस ऑफेंस। हीनस ऑफेंस आपका होगा कि कोई भी ऑफेंस जिसकी किसी लॉ में सजा 7 years या मोर है, ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो जस्ट लेट मी नो। ये दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142। Article 142, everybody understand? This is the extraordinary power of Supreme Court, जिसमें for the ends of justice, for anything Supreme Court को लगता है कि ये होना चाहिए, तो वो अपनी 142 की पावर को इन्वोक करके वो चीज को कर देते हैं, ठीक है। तो ये उनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, ओके। सो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को इन्वोक करा उन्होंने आर्टिकल 142 में, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे ऑफेंसेस, जो ऑफेंसेस में मैक्सिमम सजा 7 साल है, ठीक है, सॉरी नॉट मैक्सिमम, जो ऑफेंसेस 7 साल से ज्यादा सजा देते हैं, ओके, 7 साल से ज्यादा सजा देते हैं, वो अगर आप ये यहाँ पे हीनस ऑफेंस की डेफिनेशन को समझो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो हीनस ऑफेंस में फॉल करेंगे, राइट, क्योंकि हीनस ऑफेंसेस हैं जो 7 साल से ज्यादा की सजा देते हैं, बट जिसमें कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअली हीनस ऑफेंस नहीं, वो सीरियस ऑफेंस होंगे। मतलब कि दे विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सीरियस ऑफेंसेस जो 254 में दिया है, ठीक है। मैं इसको आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूं। सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन की बात की गई है, जिसमें जो डेफिनेशन बैरक में लिखी है वो तो होगी ही, कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसमें मिनिमम प्रेस्क्राइब पनिशमेंट नहीं बताई है, तो वो ऑफेंस भी सीरियस ऑफेंस होगा, वो ऑफेंस हीनस ऑफेंस नहीं होगा। बस यही बताया है इसमें, बट ये जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राजस्थान, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू राजस्थान। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। If this is, let's move to the next judgment. Kesham Meghachandra Singh versus Honorable Speaker Manipur Legislative Assembly. इसमें इसको मैं आपको बताने के पहले I actually want to explain you कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए ही बात की गई थी, ठीक है। कैन यू जस्ट टाइप इन अगर आपको कुछ भी एंटी डिफेक्शन का पता है। इट वॉज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट इन द 10th शेड्यूल, ठीक है। दिस वॉज बेसिकली इसको ऐड इसलिए किया गया था सो दैट जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे, ओके, डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सके। सबको डिफेक्शन समझ में आता है। डिफेक्शन का मतलब होता है where you move from one political party to another political party. You've been elected from one political party and you move to another political party. So this is not allowed. But before anti-defection law came, this used to happen a lot. And this was called as Ayaram and Gayaram का जो एक era था, that you can read about it on Google also. ठीक है, तो उसको रोकने के लिए this law was brought. इसके grounds को समझते हैं, ठीक है। Before we go to the judgment, let's read the grounds.
कि डिफेक्शन क्या है। ये आपका एक टॉपिक ऑफ पॉलिटी कंप्लीट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो डिस्कसिंग। दिस इज हाउ वी विल डिस्कस एक्चुअली द केस लॉज। जो भी उसमें रेलिवेंट लॉज भी होंगे, ओके, उसके बारे में भी वी विल टॉक, सो दैट आपका पूरा एक होलिस्टिकली आपका एक टॉपिक कवर हो। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ केस लॉ पढ़ लो एंड दैट इज इट फॉर यू, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स. If an elected member, he or she voluntarily gives up the membership of his party, ठीक है, तो this will be a ground for defection. Second, पार्लियामेंट में वोट किए जाते हैं ऑन वेरियस बिल्स, ठीक है, जो बिजनेस होता है पार्लियामेंट का। करेक्ट करेक्ट शिवम, करेक्ट, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ये यही पॉइंट है, ठीक है। तो वोट, या तो आपको वोट करना होता है या आपको एब्सटेन करना होता है। इसको कहते हैं डायरेक्शन बाय योर पॉलिटिकल पार्टी, या पार्टी विप भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप इसके अगेंस्ट चले गए, जो आपको बोला गया था आपने वो नहीं किया, ठीक है, तो आप डिफेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई होने को। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो है, अगर विद इन 15 डेज ये जो आपने किया है इसके, इस एक्ट को कॉन्डोन कर दिया जाए। थैंक यू अबू, थैंक यू सो मच। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी ऑल्सो, बिकॉज ऐसे ही, क्योंकि जब कुछ पढ़ रहे हो तो उसको आइसोलेशन में मत पढ़ो, उसको ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा एक टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है। और दिस इज हाउ यू हैव टू रिलेट द केस लॉज, कि जिसपे केस लॉ आया उस टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक न्यूज में है। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू गो अबाउट द प्रेपरेशन, ओके। तो विद इन 15 डेज your party condones it. Condone का मतलब होता है you must have read it in limitation act, condonation of delay, okay, in section 5, तो आपको माफ कर देती है वो, तो फिर this will not be considered as defection and आप you will not be disqualified, ठीक है। फिर इसमें दो ग्राउंड्स और हैं, एक है इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए, ओके, एंड इसमें क्या होता है कि इफ दिस इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर he joins any political party after his elections, so he will be disqualified on the grounds of defection, ठीक है, ये ग्राउंड है डिफेक्शन का ना। इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर सबको समझ में आता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, वो निर्दलीय लड़ रहे थे, ठीक है। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स, ओके, इफ नॉमिनेटेड मेंबर सबको समझ में आता है, एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर was a nominated member. If Sachin Tendulkar, when he was a nominated member, he joins a political party after the expiry of 6 months, okay, of being nominated, so you will be disqualified on the ground of defection, ठीक है। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है इसके बारे में है ये केस। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द हाउस, ओके, और ये स्पीकर ऑफ द हाउस एक्चुअली एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, ओके। ये इनका एक लीगल आप कह सकते हो रिकॉग्निशन है, ही एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, फाइन। तो इस केस में ये केस में लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था। आई जस्ट डू इट हियर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, ही शुड डिसाइड
on this disqualification, right, on the ground of defection, हमेशा स्पीकर डिसाइड करेगा कि जैसे ये सब हो गया, ग्राउंड्स हो गए, तो कौन इसको डिसाइड कर रहा है, ये स्पीकर डिसाइड करता है ऑफ द हाउस, ठीक है। एंड वो अलग बात है कि देयर वाज अ केस कियोटो होलोहान जिसमें आया था कि इसका जुडिशियल रिव्यू के लिए भी वो एलिजिबल है, ठीक है, वो अलग डिस्कशन है। बट ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है वो स्पीकर लेते हैं, ठीक है। ये इनको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months लेना होगा। तो ये एक लिमिटेशन लगा दी, ठीक है। बट ऑफ कोर्स एज ऑलवेज हमेशा चीजों के प्रोवाइजो होते हैं। अगर कोई एक्सेप्शनल रीजन नहीं है, अगर कोई एक्सेप्शनल रीजन है तो आप इसको 3 months से ज्यादा भी बढ़ा सकते हो, ओके। बट अगर कोई एक्सेप्शनल रीजन नहीं है तो आपको इसको 3 months में लेना होगा। बस इस केस में यही आया था, बट आई एक्सप्लेन यू सो दैट आपको एंटी डिफेक्शन समझ में आए कि क्या होता है। एंड उसको डिसाइड करने वाला स्पीकर होता है और स्पीकर को बोल दिया गया कि आप ये 3 महीने में करोगे, ठीक है। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। Is this clear to everybody? Just type in the comment section yes, so that I know and I can move forward. चलो अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस को डिस्कस करेंगे, विच इज पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच शिवा मेनबू फॉर टेलिंग मी। किसी को मतलब तुम पढ़ ही सकते हो, अब तो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज इट अबाउट। सो इसको एक बैकग्राउंड से समझते हैं, ठीक है। बिफोर वी कम ऑन द केस we'll discuss the entire background कि क्या था। तो एक केस आया था 2018 में, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है। दिस केस वाज एक्चुअली अबाउट द अब्यूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ SC/ST एक्ट, ठीक है, 1989 का SC/ST एक्ट, ठीक है। It was contended in this that there were a lot of false cases which were filed, ठीक है। तो मतलब कि अब्यूज कर रहे थे SC/ST एक्ट के प्रोविजंस का, ठीक है। मतलब समझ, दिस SC/ST एक्ट एवरीबडी अंडरस्टैंड, दिस इज SC/ST एक्ट अगेंस्ट एट्रोसिटीज अगेंस्ट द दलित कम्युनिटी ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। उसके खिलाफ के प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। लेकिन इन दिस जजमेंट देयर वर पिटिशन फाइल्ड दैट इस एक्ट का अब्यूज कर रहे हैं वो लोग जो इसमें प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ दिस जजमेंट वाज एक्चुअली अ सेफगार्ड, ओके। दिस जजमेंट वाज एक्चुअली अ सेफगार्ड। इसने तीन चीजें बेसिकली बताई थी, तो उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बताया गया था। सो अ पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड, राइट, उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल सकता है। एंटिसिपेटरी बेल सबको समझ में आता है। एंटिसिपेटरी बेल होता है कि आपको एक एंटिसिपेशन है अपने अरेस्ट का एंड आप उसके पहले ही जाके बेल के लिए अप्लाई कर देते हो, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। तो इसका प्रोविजन पहले 1989 एक्ट में नहीं था, बट ये कोर्ट ने बोल दिया। अच्छा, ये जो जजमेंट है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट थोड़ा सा जुडिशियल ओवररीच, जैसे आजकल बहुत चल रहा है दैट वी से दैट people who should interpret the law, they are actually becoming lawmakers. Do you realize that this judgment is actually making laws in the act, right?
सो ये उस पर्सपेक्टिव से भी आप कोट कर सकते हो कहीं पे. चलो, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. Then there was also a they said that this should happen कि preliminary inquiry एक होगी prior to registration of FIR. ठीक है, एक preliminary inquiry करेंगे FIR भी रजिस्टर करने के पहले इस एक्ट में. ओके, और बोला गया कि अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, एक प्रायर अप्रूवल लेना होगा. फिर इसको इन्होंने डिवाइड किया कि अगर केस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है या नॉन पब्लिक सर्वेंट, मतलब हु इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है तो किससे अप्रूवल लेना होगा, और नॉन पब्लिक सर्वेंट है तो किससे अप्रूवल लेना होगा. तो पब्लिक सर्वेंट के केस में दे सेड कि अरेस्ट अप्रूवल इसमें चाहिए होगा, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी उनका अप्रूवल चाहिए होगा. ठीक है, और नॉन पब्लिक सर्वेंट में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. इज एवरीबडी विथ मी टिल हियर? ओके, तो ये तीन चीजों को ये जजमेंट लेके आया. फाइन. अब इससे हुआ क्या? एक तो इस जजमेंट से जो प्रोविजंस थे दे वर एक्चुअली वर्चुअली डाइल्यूटेड. ठीक है, जो SC/ST एक्ट के प्रोविजंस थे दे वर डाइल्यूटेड. फाइन. एंड ऑल्सो जब ये जजमेंट आया तो इफ यू वुड रिमेंबर दिस जजमेंट लेड टू a lot of Dalit protests. ठीक है, बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे. इनफैक्ट a lot of people died also in these protests. ठीक है, so looking at this, what central government did? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो चीजें करी. एक तो उन्होंने डाला रिव्यू पिटिशन. ठीक है, दूसरा उन्होंने इन दी सुप्रीम कोर्ट, एंड दूसरा उन्होंने करा अमेंडमेंट. फाइन. सो दे ब्रॉट अ 2018 का अमेंडमेंट. ठीक है, जिसे कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018. राइट. सो ये अमेंडमेंट ले आए. इस अमेंडमेंट से क्या हुआ? ये जो सारी चीजें कोर्ट ने बोली थी कि ये होगा, सब कुछ उसने नलिफाई कर दिया एंड ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच गया एक्ट 1989 के. ठीक है, अब जब ये हुआ तो लॉट ऑफ पिटिशंस वर फाइल्ड हु वर नॉट फ्रॉम द दलित कम्युनिटी. ठीक है, दोज ग्रुप्स एक्चुअली फाइल्ड अ लॉट ऑफ पिटिशंस इन दी सुप्रीम कोर्ट कि ये जो अमेंडमेंट है ये वायलेशन है of Article 14 and Article 21. ठीक है, I hope this is clear. यहां तक सबको समझ में आया कि क्या हुआ. अब आते हैं पृथ्वीराज चौहान. Now he is an advocate. इन्होंने ये पिटिशन डाला था कि it is a violation of 14 and 21. Fine. This is done by him. तो इनकी पिटिशन पे अब जजमेंट आया है 2020 में. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया वैलिडिटी ऑफ द 2018 अमेंडमेंट. ठीक है, विच रूल्ड आउट this 2018 amendment ruled out the provision of anticipatory bail. And जो इसमें गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो एट्रोसिटीज हैं, ओके, एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST community in India is still prevalent.
and it is too soon. Okay, it is too soon to bring those kind of safeguards for people who are not belonging to that community. Okay, so this was the contention, and this contention was received well by the Supreme Court. So they upheld the constitutional validity of SC/ST Act. I hope this is clear. मैंने आपको बैकग्राउंड दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, कौन सा एक्ट है, उससे क्या हुआ था, वो क्यों ऐसा था. ठीक है, तो बिकॉज 2018 से लेके तो इसका बेस पूरा जो जेनेसिस है वो 2018 से 2020 का है. ओके, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, ये केसेस के नाम प्लीज नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको मे बी समटाइम्स यू नो द क्रक्स कि क्या है केस का, बट आपको उसका नाम नहीं पता होता, तो वो आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे कि कश्मीर लॉकडाउन में क्या हुआ था. नहीं, दे विल आस्क यू द नेम ऑफ द केस. ठीक है, सो यू शुड नोट द नेम ऑफ द केस सो दैट ये आपको नाम से याद हो. ठीक है, तो जैसे सबरीमाला जजमेंट है, उसको हम लोग सबरीमाला बोलते रहते हैं, बट उसका इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू. फाइन. तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हुआ था. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था. ओके, इस सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसी डीलर्स हैं, उनको कोई ना तो बैंकिंग सर्विस मिल सकती है और ना कोई एनबीएफसी सर्विस मिल सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सो कुछ नहीं मिल सकता इनको. ये इन्होंने ये एक सर्कुलर निकाला था, उन्होंने ये बोला था. ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली किया क्या था कि दे हैड पुट अ बैन ओके ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसीज फ्रॉम डीलिंग विथ वर्चुअल करेंसी. ठीक है, क्रिप्टो करेंसी सबको समझ में आता है, डिजिटल करेंसी का फॉर्म है जिसको आप टैंजिबल नहीं है, आप उसको छू नहीं सकते, आप बस उसके एक डिजिटल फॉर्म में वो आपके साथ प्रेजेंट होगी. ठीक है, एंड प्रोबेबली क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो इन्होंने तो ऐसा कुछ बोल दिया आरबीआई ने कि अगर भाई वर्चुअल करेंसी में कोई डील कर रहा है तो हम इनको कोई भी, एंड ऑल्सो दे सेड दैट यू कैन नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस. नाउ you know this though I have huge respect for RBI and RBI बहुत is also always very progressive, but if you look at it you realize that something which is actually the future you are not letting it happen. ठीक है, you are not letting it happen for some reason, whatever the reason is, but you are not allowing the banks and the NBFCs to upgrade themselves. So ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी आर क्वेश्चनिंग दिस आरबीआई सर्कुलर. ओके, वी आर क्वेश्चनिंग दिस आरबीआई सर्कुलर, एंड उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम ये कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो बैन आपने लगाया है ना, ये कोई भी तरह का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19(2) में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स पे, उनमें कहीं भी फॉल नहीं करते. ठीक है, एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दे क्वॉश द आरबीआई सर्कुलर. सो इसका जो क्रक्स है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्निशन, मतलब अगर आपको याद करने के लिए इसको करना है तो क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने. ओके, फाइन.
If this is clear to you, just let me know in the comment section. So cryptocurrency का recognition is what the Supreme Court did in this case. ठीक है. So these were the 5 judgments. There are other judgments also that we will talk about in future, like permanent commission of women in army and navy. This is also something which is very, very important. Okay, Shivam, thank you so much. Permanent commission of women in army and navy. ठीक है. There is a judgment जो मैं criminal के judgment जब discuss करूंगी तो we will discuss anticipatory bail. ठीक है. उसमें एक जजमेंट आया है कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं होगी. तो ये हम लोग क्रिमिनल जब पढ़ेंगे तब वी विल डिस्कस दिस. सो दिस ये और जजमेंट्स हैं जो 2020 में आए थे. डू नॉट फील कि 2020 के जजमेंट्स कैन नॉट कम इन योर एग्जाम. दे कैन ऑल्सो कम. 2021 के जजमेंट कैन ऑल्सो कम. एंड एज आई टोल्ड यू, एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट अ जजमेंट यू हैव टू सी कि has this changed a law, has this changed a position in law, and if it is doing that, that is a landmark judgment for you, that is important for your exam. ठीक है. So एक बारी इसको summarize करते हैं. All right. ये है जिससे कि आपको याद हो जाए, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में मैं इसको ऐसे एक्सेस टू इंटरनेट, इसीलिए इंटरनेट की बात नहीं है कि इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर इंटरनेट फंडामेंटल राइट हो जाएगी तो भाई सबको देना पड़ेगा ना. बट एक्सेस टू इंटरनेट मतलब कि जहां पे आपको एक्सेस चाहिए और आपको डिनाई किया जा रहा है, एज इट हैपेंड इन कश्मीर, एज इट हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सो दिस एक्सेस टू इंटरनेट is you can't deny it and it is a fundamental right. This was held in this case and the background was Kashmir's lockdown. ठीक है. I have explained you ये इसमें क्या था. Shilpa Mittal versus State of Delhi and another. As I've told you, this is very, very important for RJS. Do not forget this judgment because this has changed a position of law in the JJ Act. ठीक है. सीरियस ऑफेंस और हीनस ऑफेंसेस के बारे में था. तो जो भी क्राइम जिसका पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है लेकिन उसमें कोई मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो उस केस में आप उसको हीनस ऑफेंसेस में नहीं सीरियस ऑफेंसेस में डालेंगे. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ऑलराइट. देन we had Kesham Meghachandra Singh versus Honorable Speaker Manipur Legislative Assembly. हमने इसमें पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ को समझा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड एंटी डिफेक्शन के दो, इफ यू जस्ट वांट टू रिमेम्बर इट, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से तो ये आया था एंड देयर इज 91st अमेंडमेंट एक्ट जिससे इसमें कुछ चेंज आया था. तो 2 अमेंडमेंट्स इससे रिलेट करते हैं. ओके. सो इसमें ये बोला गया था कि जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन है वो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसाइड करना है विद इन 3 months. बट इफ देयर आर एनी एक्सेप्शनल रीजंस व्हाई ही कांट डिसाइड विद इन 3 months, एक्सेप्शनल रीजंस नहीं बताया कि क्या होगा, देन इट्स ओके. देन यू कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड 3 months. फाइन. देन वी हैड पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें हमने we discussed a case of 2018 and we also discussed the 2018 का amendment. ठीक है. और ये जो 2018 का amendment है उसको upheld किया है इसमें, जिसमें जो all the everything which was in the 1989 the original act, every position वो वापस वहां पे ही जा चुकी है. ठीक है. तो कोई person जिसने इस एक्ट में वो अक्यूज्ड है वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकता, उसको ये सेफगार्ड नहीं अवेलेबल है. ठीक है. इट्स अ टॉपिक ऑफ डिबेट. यू कैन रीड मोर अबाउट इट इफ दिस इंटरेस्ट यू बिकॉज it's a good discussion, you know, it's something that you should read, might come handy in writing some essays. Fine. This is the last case that we discussed. Okay, Internet and Mobile Association of India versus Reserve Bank of India, जिसमें I think something very interesting, cryptocurrency. Also, I hope everybody understands cryptocurrency. नहीं समझ में आता है तो ये भी एक GS का current affairs का topic है
जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी, बिहार, ओके। क्योंकि जैसे नाउ इकोनॉमिक्स आती है यूपी में, they have said that they'll ask you questions about, तो क्रिप्टो करेंसी पे लिखने को आ सकता है इन योर मेंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा बिकॉज उसमें सिर्फ करंट इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है। सो we can actually do a session on economics. Just type in yes if you want, तो हम इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो we can discuss, okay, if you want that, if you, because इकोनॉमी में ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, इकोनॉमी में सिर्फ करंट पढ़ना होता है। डू नॉट ट्राई टू रीड द स्टैटिक पार्ट ऑफ इट। पढ़ने का तरीका भी ये होता है कि यू सी द टॉपिक, यू सी द न्यूज एंड उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको जाके पढ़ लो, सारा स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो यूपी, बिहार, दिल्ली के लिए दिस कुड बी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दिस जजमेंट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट उस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो दिस इज ऑल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। Before you leave, please like, share and subscribe to the channel, and please press the bell icon. Let me just also एक बारी वापस से let me tell you the special, okay, free special live classes, okay. Constitution that I take, it happens on Saturdays. I have a session today at 7 p.m. okay, on Unacademy. You can follow me there and you can attend this session. This is free. The session is going to be on amendment, okay. Then on Sundays I take CRPC, and on Monday I take contract, fine. Then on Tuesday we do evidence, fine. And on Thursday we do IPC, and again Saturday को ये this is something जो पूरा properly mains और prelims के हिसाब से है। अभी तक we have just done two classes in each subject, so ऐसा कुछ you can watch the recorded sessions as well. They are always available on Unacademy, fine. So you can do that as well, and you can attend the live classes also because these are interactive live classes. I clear doubts, whatever you want to ask, we'll just clear the doubts real time, okay, there only. So these are the features of live classes that I've already discussed with you. Hope to see you in the live classes as well, and also the YouTube sessions we have, okay. The next YouTube session that we will have, that will be on amendment, ठीक है. So thank you so much everybody. I hope to see you in the free special live classes as well as in the YouTube sessions. Sure. Just type in the comment section if you like the session, if you've understood all these 5 judgments, and we will keep bringing you more judgments like these which are important for your exam.